Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Ka Funda. Today I am here with you to present class 10 electricity chapter third part. Okay, I think in the second part I explained about potential and potential difference, and in the first part I explained about charge and electric current. So today I will tell you a little bit of resistance. What is resistance? And this will come from Ohm's law. Okay, Ohm's law is a law of is a famous law of electricity. So today let first of all we'll discuss Ohm's law, and then how resistance depends on the dimension of a conductor. That one will discuss. Okay, so before that I think a little bit is there, means in the circuit diagram is there. You can see in the book circuit diagram, and in circuit diagram we have, you see, different components of a circuit diagram. That is very important. You need to know the symbols of different components. There are some symbols are there. You see, first of all, cell, a cell. How to draw a cell? One longer line with a shorter line, where this cell is these two are the wires. Okay, these two are the wires. This is negative terminal, this is positive terminal. Shorter one is the negative terminal, longer one is the positive terminal. Then a combination of cells or battery, combination of cell, or we can tell it a battery. So how this is a combination of cell? I have combined three cells. See, this is a combination. What you have to do, from the negative to the positive of another battery, this is negative, from the negative to the positive of another battery, and then you can add more. Okay, 3 4 5, whatever, how much you need, you can add, so that you will get the more potential difference between 2 points. Okay, let it be. I will explain what is potential difference afterwards. Now you see, battery is combination of cells. Okay, this is what combination of cell. And then uh, switch, sometimes it is called key. Okay, key or switch. When it is open switch, how to write? This way. This is an open switch. Sometimes this way. Okay, this way or this way. When it is closed, what dot is given? Dot means this is closed. Okay, means there is a connection. यहाँ पे connection नहीं है, ये वायर और ये वायर के बीच में connection नहीं है, because dot is not there. ये dot क्या कर रहा है? ये वायर और ये वायर के बीच एक connection कर रहा है. तो this is like a switch. Okay, this, when you give the dot, this is switched it closed. When you don't give the dot, that is it is open. And then a resistor. Okay, a resistor of resistance R. I will tell you what is resistance. This has this shape. This is a resistance. Then variable resistance, variable resistor, or sometimes it is called rheostat. 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 Variable, it can change its value. Na? Variable means what? Which can change its value. So it is a resistance. So I have given resistance, but it is variable. This sign will give that. This sign will give that the value of this resistance can change. और rheostat को हम ऐसे लिखते हैं, like this. This is coming. So here, like this. This is rheostat. Okay, you can change this taping. This is a taping key. This is a taping key. You can change. If you see, listen. If you tape this one here, like this, suppose. This is a resistance. If you tape this one in the middle, that means you will include this much only in the circuit. You will exclude. I will explain all this thing. If you get anything in the circuit diagram, I will explain. इतना क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, इतना एक्सक्लूड हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस इतना ही होगा ना. इतने वायर के लिए क्या होगा? हाफ होगा. अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस R था, अभी क्या हो गया? R/2 हो गया, तो चेंज हो गया ना वैल्यू. तो रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट इज नथिंग, it is just a variable resistor. Okay, resistance. Then bulb, how it is? Bulb is drawn like this. This is a bulb. Okay, then joint, wire joint, very important. Wire joint.
see, if two wires are there like this is one dot is given, that means there is a connection. ये चारों वायर क्या है, एक पॉइंट पे क्या है, कनेक्ट है. और अगर कनेक्शन नहीं होगा तो ऐसे होगा, लिसन, दिस वे और समटाइम्स this way also. Simply, if there is no dot here, then you can say that there is no connection. एक वायर ऐसे गया, एक वायर ऐसे गया, but there is no connection here. वो जो प्लास्टिक का कोटिंग है ना, वो प्लास्टिक का कोटिंग है, तो यहाँ पे कनेक्शन नहीं है. दो वायर ऐसे है, तो there is no connection in this portion. So this will be like this. अगर कनेक्शन होगा तो डॉट देके हम लिखेंगे. ओके. Then emitter, very important. Emitter, AMMETER. Emitter is a meter, okay, plus minus. Emitter is just a meter which measures how much current is flowing through the circuit. Okay, emitter is a meter. Emitter क्या करता है, कितना करंट उस सर्किट से जा रहा है, सर्किट से फ्लो कर रहा है, वो मेजर करते हैं. वोल्टमीटर इज V प्लस माइनस. ये क्या होता है, दिस voltmeter is also a meter which reads what, how much potential difference between 2 points is. So you remember, emitter is always, okay, series parallel I will tell you afterwards. Emitter क्या है, series पे होता है या फिर parallel पे, I'll tell you afterwards. Okay, this is all about the symbols of different components of a circuit. So if you have a circuit, you will have these components, okay, in the circuit. Okay, now Ohm's law, very important. Ohm's law, LAW, Ohm's law. See, we are saying that current, potential difference, all these things. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन होता है, वही रिलेशन को क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है. ओम ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, देखो, एक्सपेरिमेंट में किया था कि ये जो बैटरी है ना, दिस इज द बैटरी, वन वायर इज देयर, दैट वायर हैज, ओके, वायर इज देयर, स्विच इज देयर, एमीटर इज देयर, voltmeter here, this is voltmeter. voltmeter को यहाँ कनेक्ट कर दे. This is called parallel connection. So remember, voltmeter is always connected in parallel. ये A और B पॉइंट है, A और B के बीच में two things are there. There are two things in between A and B. एक तो क्या है, वो वायर है, this is a wire, okay, this is a wire, एक वायर है, और कंडक्टर, you can say this is a conductor, और एक क्या है, वोल्टमीटर है. सो देखो, वोल्टमीटर और वो वायर पैरेलल नहीं है क्या, यस, दिस इज पैरेलल कनेक्शन. बट दिस एमीटर इज इन सीरीज, इसको सीरीज बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन. सीरीज मींस वन आफ्टर वन, ओके, सीरीज मींस वन आफ्टर वन. ओके, सो यू सी, दिस इज अ सीरीज, दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन. सो यू रिमेंबर, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. अभी क्या किया उन्होंने किया कि ये जो सेल है ना, ये जो सेल है, दिस सेल हैज सपोज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V. दिस सेल सपोज क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V. ये V जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो क्या है, लिसन, दैट इज व्हाट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों के बीच में क्या है, ये सेल है. दिस सेल इज इन बिटवीन दिस टू पॉइंट. in between these 2 points, the cell is there. This cell creates, listen, this cell creates at this point some potential V1, at this point some potential V2. और ये दोनों के पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V1 माइनस V2, माइनस नहीं होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या है, वो V है. इसको हम V से लिखते हैं. We write potential difference by V. That means ये दोनों के बीच में अगर V होगा तो A और बीच में भी तो V ही होगा ना. क्लियर? A और B पॉइंट के बीच में ये दो पॉइंट कहाँ है, ये दो पॉइंट तो इसी तरफ है ना. देखो, there is a connection. Okay, if I switch it close,
So there is a connection. So the voltage, or you can say the potential difference between these 2 points and these 2 points is same. उन्होंने क्या किया, Ohm he had done some experiment. He changed this value, he changed this cell. ये सेल का अगर वैल्यू V1 होगा ना, V1 होगा, तो उन्होंने करंट नापा था. He measures current and he measured current and he saw that he has some relation between current and voltage. This is known as voltage potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस को अगर इंक्रीज किया उन्होंने, तो देखा कि एमीटर पे करंट भी क्या होता है, इंक्रीज ही होता है. पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा डिक्रीज किया, करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. दैट मींस देयर इज दिस रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, एंड ही फाइनली फॉर्मुलेटेड दैट दिस पोटेंशियल. देखो, एक को इंक्रीज करो दूसरा इंक्रीज हो गया, एक को डिक्रीज करो दूसरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं. ओके, दैट मींस the potential difference, okay, potential difference is directly proportional to electric current. potential difference को बढ़ाओ, electric current भी बढ़ता है. okay, that means what, this is directly proportional. so if I write V is equal to, then I have to give one constant. that constant is given by R I. ये जो R है ना, इसको बोलते हैं resistance of the wire AB वायर का रेजिस्टेंस है क्या, R. ओके, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस फिजिकली. रेजिस्टेंस जो है ना, ये नाम से पता चलता है कि दिस इज गिविंग सम व्हाट, ऑपोजिशन. दिस इज गिविंग सम फोर्स इन द ऑपोजिशन. दैट मींस दिस रेजिस्टेंस ऑलवेज ऑपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. कैसे, देखो, V इज इक्वल टू आर आई, ये मिल गया ना, यहां से R लिखो, क्या हो गया, V बाय आई हो जाएगा ना, R इज इक्वल टू V बाय आई हो जाएगा. तो देखो, अगर करंट, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाओ तो क्या होगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाने से क्या होगा, करंट घट जाएगा. देखो, इफ यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू, जैसे I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर. I इज इक्वल टू V बाय आर होगा ना, I इज इक्वल टू V बाय आर. तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, घट जाएगा. अगर रेजिस्टेंस घटाओगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो R क्वांटिटी है, दिस इज व्हाट, दिस क्वांटिटी ऑलवेज ऑपोजिट्स द इलेक्ट्रिक करंट. अगर R का वैल्यू ज्यादा होता है तो I का वैल्यू कम होता है, और अगर R का वैल्यू कम होता है तो I का वैल्यू ज्यादा होता है. दैट मींस दे ऑपोजिट ईच अदर. तो यहां से हमें क्या पता चलता है, दिस लॉ V इज इक्वल टू आर आई इज कॉल्ड ओम्स लॉ. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ हमें क्या देता है, ओम्स लॉ हमें देता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन. पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल to what, potential difference is always proportional to the electric current flowing through the wire or through the circuit. okay, so this is called Ohm's law, और Ohm's law का mathematical form क्या है, V is equal to IR है. so you see this potential difference has, I told, 1 volt ना, 1 volt is the SI unit of potential difference. यहां से अगर तुम्हें R का SI यूनिट लिखना है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या है, व्हाट इज R? R इज इक्वल टू V बाय आई ना, R इज इक्वल टू V बाय आई. SI यूनिट ऑफ R विल बी व्हाट, V क्या होता है, वोल्ट बाय एम्पेयर. इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है, एक्सप्लेन. तो इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पेयर. इसको बोलते हैं ओम्स लॉ से क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो इसको ओम्स बोलते हैं. तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम है ओमेगा. कैपिटल ओमेगा इट इज. देयर आर 2 ओमेगास आर देयर. दिस इज स्मॉल ओमेगा, दिस इज कैपिटल ओमेगा. ओके, सो वी विल यूज कैपिटल ओमेगा टू रिप्रेजेंट व्हाट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. इसको बोलते हैं ओम. ओके, इसको बोलते हैं ओम. सो वोल्ट पर एम्पेयर, दैट मींस 1 ओम इज इक्वल टू व्हाट, 1 वोल्ट पर
एम्पेयर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहां से अगर तुम्हें डिफाइन करने दे कि डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ यू विल डिफाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड ना? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाओ, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है। तो यहां से क्या होगा, देखो V is equal to IR, we got right now. From here we need R V by I. हमें क्या डिफाइन करना है? क्वेश्चन आता है सपोज डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमें रेजिस्टेंस डिफाइन करना है, तो हमें एक इक्वेशन लिखना है जहां पे R इज इक्वल टू समथिंग होगा। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? V by I होगा। यहाँ पे हम चूज करेंगे, चूजिंग व्हाट? V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। दोनों को अगर 1 1 चूज करोगे तो R का वैल्यू 1 ही होगा ना, 1 डिवाइडेड बाय 1। तो R विल बी हाउ मच? 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर। इसको बोलते हैं 1 बाय 1 इज 1 वोल्ट आ गया, एम्पेयर ऊपर चला गया, एम्पेयर इनवर्स। तो 1 वोल्ट पर एम्पेयर, इसको क्या बोलते हैं? 1 ओम। तो 1 ओम हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी विल डिफाइन 1 ओम? इफ द इलेक्ट्रिक करंट, okay, if the electric current passing through a conductor having potential difference 1 volt is 1 ampere, then the resistance of the wire or of the conductor is said to be 1 ohm. वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, उस कैसे बोलते हैं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, जिससे क्या होगा? 1 एम्पेयर करंट पास करेगा अगर उसके दोनों एंड पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। सो आई विल राइट दिस वन एंड आई विल गिव इट टू यू। ओके, 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे एक वायर के दोनों एंड में, और उस वायर से अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो होगा, तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। अंडरस्टूड? सो this is all about Ohm's law. Okay, so next we will discuss about how this resistance, I told this resistance, how this resistance changes. Actually this resistance changes for a conductor. Conductor का resistance किस पे depend करता है? That is very important. Okay, how to write? Factors affecting the resistance ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन। रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज जस्ट व्हाट? रेजिस्टेंस इज एक्चुअली सम ऑपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट। दैट मींस व्हाट? करंट क्या होता है? करंट इज व्हाट? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दैट मींस अगर ये क्या होगा, ये ऑपोजिशन देगा रेजिस्टेंस टू करंट, तो ये किसको ओपोज कर रहा है? चार्जेस को ओपोज कर रहा है मूव करने के लिए। अंडरस्टूड? अगर चार्ज नहीं मूव करेगा तो हम क्या बोलेंगे? करंट नहीं है। अगर चार्ज थोड़ा सा कम मूव करेगा तो हम बोलेंगे करंट थोड़ा सा कम है। अगर चार्ज ज्यादा मूव करेगा तो हम बोलेंगे कि उस सर्किट पे करंट बहुत ज्यादा है। तो अगर यू सी व्हाट you are writing factors affecting resistance of a conductor, that means resistance का मतलब क्या होता है? what is resistance? resistance is actually some opposition to electric current. तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? चार्जेस का फ्लो को अपोज करेगा। तो अभी देखो, एक तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर ए बी, इसका लेंथ सपोज एल है। अंडरस्टूड? इसका लेंथ एल है। क्लियर? यू हैव ए कंडक्टर एंड दैट हैज सम लेंथ, व्हाट इट इज? एल। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। नाउ इफ यू नीड टू हैव इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लो करना है, चार्ज ए से बी तक फ्लो करना है। अगर इसका लेंथ बढ़ा दोगे, लिसन, इफ यू इंक्रीज द लेंथ, तो अगर इंक्रीज करोगे लेंथ तो क्या होगा? रो एल बाई ए। इंक्रीज करोगे लेंथ को अगर बढ़ा दोगे तो यू सी ए से बी तक जाने के लिए जितना इसको इजी था, चार्ज को ए से बी तक जाने के लिए जितना इजी था, चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स वर दे वे मूविंग फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रॉन्स वे मूविंग फ्रॉम ए टू बी, उस पे जितना इजी था मूव करने के लिए, अगर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बी पॉइंट सपोज यहाँ पे आ गया, तो वो चार्ज को मूव करने के लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट?
थोड़ा सा ऑपोजिशन ज्यादा आ गया लेंथ बढ़ने के लिए, दैट मीन्स अगर लेंथ बढ़ जाएगा, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड, वी कैन से दैट द फ्लो ऑफ चार्ज विल इट विल डिक्रीज अ लिटिल बिट। तो अगर फ्लो ऑफ चार्ज इज डिक्रीजिंग अ लिटिल बिट, तो लेंथ के साथ ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। लेंथ अगर बढ़ जाएगा, लिसन, लेंथ को हमने बढ़ा दिया, if we increase the length, you see the electrons, that means charges, the electrons will feel a little bit difficult to flow, understood, because it has to travel a little bit of longer path. So that's why if it has to travel a little bit of longer path, we can say that it will face a little bit of problem in moving. That means what, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर लेंथ बढ़ाओगे। क्लियर? सो वी कैन से दिस फर्स्ट फैक्टर, वी कैन से रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू एल। कैन आई? लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज द चार्जेस हैज टू फ्लो अ लॉन्गर डिस्टेंस। अगर लॉन्गर डिस्टेंस फ्लो करना है, थोड़ा सा तो ऑपोजिशन पहले से तो ज्यादा होगा ना, अंडरस्टूड? पहले जितना था उससे ज्यादा होगा, दैट मीन्स व्हाट, ऑपोजिशन ज्यादा हो गया थोड़ा सा, दैट मीन्स व्हाट, क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। किसको बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा? लेंथ को बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा। तो लेंथ और रेजिस्टेंस का एक क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये क्या है, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, कैसे लिखते हैं? प्रोपोर्शनल से लिखते हैं। नाउ यू सी, इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो, इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये थोड़ा सा थिन था, मैंने ये वायर थिक वायर ले लिया। ओके, थिक वायर मींस दिस वन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, यू नो, इफ यू सेक्शन दिस वायर लाइक दिस, ओके, you will get the circle. That circle has some area, that is called cross sectional area. उस एरिया को अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो चार्ज जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा, उसको ज्यादा रास्ता मिल जाएगा, उसको ज्यादा क्या मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा मूव करने के लिए। दिस विल गेट, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट some more easily, it will move. Why? Because it will get some more path, because you have increased the thickness. अगर थिकनेस बढ़ा दोगे तो थिकनेस बढ़ा देने से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ज्यादा क्या मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा मूव करने के लिए, तो ये इजीली मूव करेगा, अंडरस्टूड, बिकॉज इट विल गेट मोर पाथ एक्चुअली टू मूव। सो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल इजीली मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर। सो इजीली अगर मूव किया, दैट मीन्स व्हाट, थोड़ा सा रेजिस्टेंस घट गया ना, मूव करने के लिए इजी हो गया, दैट मीन्स व्हाट, रेजिस्टेंस घट गया। ये जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन थोड़ा सा घट गया मींस व्हाट, ऑपोजिशन घट गया, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया। अंडरस्टूड नाउ व्हाट आई एम टेलिंग? सो इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाट वी कैन सी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ यू इंक्रीज the exposure for the electrons will increase to flow actually. So if it is flowing easily, we can say that the resistance is getting decreased and decreased. Okay, so we can say अगर एरिया को बढ़ाओ, इफ यू इंक्रीज द एरिया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। ओके, रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, दैट मींस व्हाट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ ऐसे लिखते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेट मी राइट हियर, R is inversely proportional to 1 by A. A का वैल्यू बढ़ाओ, R का वैल्यू कमेगा, A का घटेगा, और A का वैल्यू घटाओ, R का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। देखो, if you increase A, that means what, thickness अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे, you just try to understand the physics, what happens there. If you increase the area of cross section, the charges will get more path actually to flow, okay, to move. So उससे क्या पता चलता है, ये इजीली मूव करेगा, और इजीली मूव करेगा से क्या पता चलता है, उसमें थोड़ा सा ऑपोजिशन कम हो गया, पहले से कम हो गया मींस व्हाट, रेजिस्टेंस थोड़ा सा घट गया। सो ऐसे लिखते हैं। तो दोनों को अगर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इफ वी कंपेयर, if we combine first one and second one, R is proportional to L, first one, R proportional to L, R proportional to 1 by A। अगर दोनों को मिलाओ तो क्या होगा, R proportional, ये L के L into 1 by A होगा ना, L into 1 by A, पहले तो L था, इसमें 1 by A था, तो दोनों को मिला के हम ऐसे लिखेंगे। सो R को इज इक्वल साइन लिख के हम एक कांस्टेंट देना है हमें,
उस कांस्टेंट को रो से लिखते हैं, रो, इसे पी नहीं है ये, दिस इज नॉट पी, दिस इज रो. सी माय हैंड, हाउ आई एम राइटिंग दिस वे. This is RHO. We read by rho. I think Roman number it is. So rho L by A. Can I? R is equal to rho L by A. So this is a very important formula. R is equal to rho L by A, where rho is a constant of proportionality. हमने proportional, देखो proportional sign हटा के हमने क्या दिया, इक्वल साइन दिया, तभी हमें ये कांस्टेंट मिला. ये कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को बोलते हैं, this constant of proportionality is called resistivity. This constant of proportionality is called resistivity. R-E-S-I-S-T-I-V-I-T-Y. Resistivity of the material of the wire. Resistivity of the material of this wire. What you are going to check? You are going to check the resistance of that wire ना, by changing the length, by changing the area of cross section. उसी वायर का ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है. लिसन वेरी केयरफुली. वो वायर अगर आयरन का होगा तो उसका रेजिस्टिविटी जितना होगा वो फिक्स्ड है. रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट, आई एम टेलिंग, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर ए फिक्स्ड मटेरियल. इफ इट इज मेड अप ऑफ कॉपर इट विल बी फिक्स्ड. कॉपर का वही है वैल्यू, चेंज नहीं होगा. इफ इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, आयरन, इसका वैल्यू जितना है उतना ही होगा. इफ इट इज मेड अप ऑफ सपोज व्हाट टू से प्लेटिनम, उसका क्या होगा, वही होगा जो वैल्यू होता है. अंडरस्टूड? सो वैल्यू विल नॉट चेंज. तुम लेंथ बढ़ाओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओ, रेजिस्टिविटी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा. बिकॉज रेजिस्टिविटी एक्चुअली दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ अ वायर. ये प्रॉपर्टी किसका है, मटेरियल का है. अगर ये मटेरियल कॉपर का है तो कॉपर का जितना वैल्यू होगा रेजिस्टिविटी, इसका लेंथ जितना भी बढ़ाओ तुम, उसका वैल्यू उतना ही होगा. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज. लिसन वेरी केयरफुली. रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज विद द लेंथ, विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, बट रेजिस्टेंस विल चेंज. Resistivity is just a property of a material of a wire. Okay, resistivity is just a property of a material. अगर मटेरियल कॉपर का होगा तो उसका एक फिक्स वैल्यू होगा, अगर मटेरियल आयरन का होगा उसका एक फिक्स वैल्यू होगा, अगर मटेरियल प्लेटिनम का होगा, जो भी होगा उसका क्या होगा, वैल्यू फिक्स होगा. जितना भी उसका लेंथ हो, जितना भी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो. तो प्रॉब्लम क्या आता है इसमें, न्यूमेरिकल्स देते हैं तो एक वायर दिया हुआ होता है, उस वायर का लेंथ बढ़ा जितना है उससे डबल कर दिया होता है. तो लेंथ अगर डबल कर दिया, उसका रेजिस्टेंस में क्या क्या चेंज आएगा, उसको बोलते हैं, उसको क्वेश्चन में देते हैं. व्हाट चेंज इट विल ऑकर इन इट्स रेजिस्टेंस इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मेक 3 times like that, if the length of the cross section is doubled like that. This questions we will do some numerical, no problem, but try to understand this equation. R is equal to rho L by A. So यहाँ पे R क्या है, उसी वायर का रेजिस्टेंस है. रो क्या है, उस वायर का क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी. L क्या है, लेंथ है, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. सो यहाँ पे देखो, इस रो इज द रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट. एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, यहां से हम क्या लिखेंगे, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. इज नॉट इट, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. आर से ए इस तरफ आ जाएगा, आर ए बाई एल. ओके, सो यू सी इसका एसआई यूनिट क्या होगा, आर का एसआई यूनिट ओम है, ओम. रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम. जस्ट नाउ आई टोल्ड. ए का कितना है, मीटर स्क्वायर. ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया का क्या है, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर है, और नीचे क्या है, देखो एल है, एल का क्या है, मीटर है. ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर. 1 मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ओम मीटर. वेरी इंपॉर्टेंट. रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है. ओके, सो रिमेंबर दिस, ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ resistivity. Okay, done. So this is all about Ohm's law and some factors affecting resistance of a conductor. Clear? Now I am going to stop here because it is becoming lengthy. So in the next video we will do some numerical regarding this problem, and then we'll proceed towards series and parallel connection of resistors. Okay, so thank you for watching. Okay, so do like my video. Okay, share my video. Bye bye.